to EduVibe, the vibe of smart education. So, children, this is chapter 2, diversity in the living world, and we are going to start part 9 of this chapter. If you want to see previous parts of this chapter and the chapter number 1 of your book, then please जाइए और सब्सक्राइब कीजिए EduVibe, the vibe of smart education. So, children, in this part, we will learn how to group animals. Animals को हम कैसे group करें, okay? So, उनकी height के basis पे, उनकी body structure के basis पर, उनकी eating habit के basis पर, वो कहाँ रहते हैं, region wise, right? इन सब चीजों पर हम उनको grouping करते हैं. So, let's see. Just like plants की ही तरह animals too are significantly different from one another. Animals भी बहुत ज्यादा एक दूसरे से different होते हैं. हम उनके difference को easily देख सकते हैं. How can we group such a wide variety of animals? हम इतनी ज्यादा variety के animals को, क्योंकि बहुत सारे animals हैं, उनको कैसे ग्रुपिंग कर सकते हैं, उन्हें कैसे ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं. What features can you think of a group them? और आप कौन कौन से फीचर्स के बारे में सोचते हैं जिनके बेसिस पर आप उन्हें ग्रुप कर सकेंगे. इन एक्टिविटी 2.3 you have already set some basis. हमने कुछ बेसिस को यहाँ पर सेट किया है फॉर ग्रुपिंग एनिमल्स को ग्रुपिंग करने के लिए. सो नाउ लेट अस explore a few of these in more detail. So चलिए आगे चलते हैं. Now let us find out. You have recorded the movement of a few animals in table 2.2. आपने 2.2 टेबल्स में कुछ एनिमल्स के मूवमेंट्स को रिकॉर्ड किया है. You may have also observed. आपने कुछ ऑब्जर्व भी किया है कि how other animals move from place to place. कैसे दूसरे जो जानवर होते हैं वो एक जगह से दूसरी जगह पर मूव करते हैं, right? So now let us now think about the types of movement in animals. तो अब हम सोचते हैं एनिमल्स में होने वाली मूवमेंट के बारे में. A number of animals are shown in figure 2.7. Okay? तो यहाँ पर आपको फिगर 2.7 में आपकी बुक में बहुत सारे एनिमल्स यहाँ पर दिखाए गए हैं. यू कैन एड मोर एनिमल्स दैट यू मे हैव ऑब्जर्व्ड. आप इनमें और एनिमल्स को ऐड कर सकते हो जिनको आपने ऑब्जर्व किया हो. एंड क्रिएट अ पोस्टर. आप एक पोस्टर क्रिएट कर सकते हो ऑन द वेराइटी ऑफ एनिमल्स. ओके, सो एनिमल्स की वेराइटी पर आप एक पोस्टर भी बच्चों क्रिएट कर सकते हैं. Which body part are used by the animals in the poster you created? So, आपको बताना है which body parts are used. कौन कौन से body parts use हुए हैं animals के द्वारा पोस्टर में जो कि आपने बनाया है. And those in figure 2.7 for movement. So, you can see here, children, this is the figure 2.7 diversity in animals. तो यहाँ पर आप देख सकते हो you have the picture of number of animals. Now list these animals in table 2.5. Note the ways. आपको उन ways को नोट करना है, उन तरीकों को नोट करना है in which these animals move, जिसमें ये एनिमल्स मूव करते हैं. एंड नेम द बॉडी पार्ट्स. आपने उन बॉडी पार्ट्स को नेमिंग भी करना है जो कि इस मूवमेंट में यूज होते हैं. Some examples are given in table 2.5. So we have the table here, students. Let's study. Now movements in animals, okay, and their body parts involved. So we have the table here. This is serial number of the animals. And these are the names of animals. Now, first is ant. Okay, so type of movement, we don't know. And body part used for movement, legs. Second, goat walks and jumps. वो walk करके और jump करके move करती हैं from one place to another. And ये भी legs का use करते हैं. Pigeon walks and flies.
legs and wings. Housefly walks and flies, legs and wings. Then fish uses its fins. Okay, so आपने और भी किसी एनिमल को अगर ऑब्जर्व किया है, so you can write it here. Now, what conclusions can you draw from the data given in table 2.5? अब इस टेबल से आप क्या कंक्लूजन निकालते हैं बच्चों? जब तक हम अगले पेज पर जाते हैं, आप सोचिए. यस, सो क्या कंक्लूजन हम निकालते हैं कि डिफरेंट एनिमल्स हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ मूवमेंट. भिन्न भिन्न जानवरों के भिन्न भिन्न प्रकार की मूवमेंट्स होती हैं, गतिविधियां होती हैं. ठीक है. एनिमल्स कैन फ्लाई, वो उड़ सकते हैं. रन, क्रॉल, वॉक, हॉप और जंप एंड सो ऑन. ठीक है, कोई चल सकता है, कोई उड़ सकता है, कोई क्रॉल करता है, कोई हॉप करता है, कोई जंप करता है. दे यूज डिफरेंट बॉडी पार्ट्स, वो डिफरेंट डिफरेंट बॉडी पार्ट्स यूज करते हैं फॉर मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. एक जगह से दूसरी जगह जाने में. दे मे यूज विंग्स, वो अपने विंग्स को यूज कर सकते हैं, लेग्स को एंड अदर पार्ट्स दैट हेल्प देम टू मूव, जो उन्हें मूव करने में हेल्प करता है. राइट. Here we have identified, यहाँ पर हमने ये देखा कि animals based on the type of movement and the body parts used for movement. हमने यहाँ पर कैसे ग्रुपिंग करी? टाइप्स ऑफ मूवमेंट के ऊपर और बॉडी पार्ट्स जो उन्होंने मूवमेंट के लिए यूज किए. हाउ कैन वी ग्रुप एनिमल्स बेस्ड ऑन देयर मूवमेंट? अब हम मूवमेंट के बेसिस पर उन्हें कैसे ग्रुप कर सकते हैं? सो एडिशनली Many animals differ from each other. बहुत सारे एनिमल्स एक दूसरे से अलग होते हैं. कैसे? इन शेप, साइज, स्ट्रक्चर, कलर एंड अदर फीचर्स. इन सब चीजों में एक दूसरे से अलग होते हैं. Some of these features, इनमें से कुछ फीचर्स can also be used to group animals in various ways. बहुत सारे तरीकों में काम आते हैं एनिमल्स को ग्रुप करने में. Like plants, grouping of animals is important for understanding their diversity. Plants की ही तरह animals की diversity को समझने के लिए उनको भी grouping करना बहुत important है. Right? चलिए आगे सीखते हैं. So children, on this page we will know about a scientist and the name of the scientist is Janaki Ammal. 1897 to 1984. She was an Indian botanist. ये एक इंडियन बोटानिस्ट थी. Dedicated to environmental work and helped to document and preserve India's rich plant biodiversity. ये डेडिकेटेड थी पर्यावरण के प्रति काम में और इन्होंने हेल्प की किस चीज में? डॉक्यूमेंटेशन करने में और प्रिजर्व करने में. किसे? भारत की समृद्ध वन्य जैव विविधता को प्रिजर्व करने में और उसको डॉक्यूमेंटेशन करने में इन्होंने हेल्प की. She played a key role in the Save Silent Valley movement. इन्होंने Save Silent Valley movement में एक बहुत important रोल अदा किया. As the head of the Botanical Survey of India, she initiated programs. इन्होंने programs को start किया, initiate लिया to document the plant diversity of India. Now we will know about the success story of Save Silent Valley movement. क्या था ये Save Silent Valley movement? This is a real story of a forest. ये एक forest की real story है बच्चों in the Palakkad district of Kerala. Palakkad district थी केरला में, वहां पर forest की ये real story है. It is about preserving untouched beauty of a moist evergreen forest. ये एक moist evergreen forest की untouched beauty को बचाने के लिए ये movement start किया गया था. And its rich biodiversity, और इसकी समृद्ध जैव विविधता को भी. The now famous silent
वैली, अब जो फेमस है साइलेंट वैली के नाम से, was saved by a remarkable movement led by common people. ये एक बहुत ही ज्यादा रिमार्केबल मूवमेंट था जो कि आम जनता द्वारा चलाया गया था, who were not even residing in the vicinity of the forest, जो कि उस जंगल के चारों तरफ वो रह भी नहीं रहे थे, तब भी उन्होंने इस मूवमेंट को चलाने में हेल्प किया, उन्होंने अपना योगदान दिया। द बैटल अगेंस्ट द प्रपोजल ऑफ अ हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम, एक युद्ध लड़ा गया किसके विरुद्ध? एक जो प्रपोजल, एक सुझाव दिया गया था हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम बनाने का अक्रॉस द कुंती पुजा रिवर, persisted for 10 years. Okay, so at that time, उस समय people used all possible available means, लोगों ने सभी संभव मीन्स को, साधनों को यूज किया, सच एज वाइड स्प्रेड अवेयरनेस प्रोग्राम्स, ओके, लेटर्स टू एडिटर्स, एडिटर्स को लेटर्स लिखे गए, आर्टिकल्स इन न्यूज़पेपर्स, सेमिनार्स एंड पेटिशंस एंड अपील्स इन कोर्ट, वो लोग कोर्ट तक भी गए, अदालत तक भी गए। द मूवमेंट वॉज सक्सेसफुल, ये जो मूवमेंट था, आंदोलन था, ये सफल था इन सेविंग द साइलेंट वैली, साइलेंट वैली को बचाने के लिए। ओके चिल्ड्रन, नाउ वी गो अहेड मोर टू नो। So this part ends here. Stay tuned. Now you have questions. Feel free to ask anytime. Looking forward to a great year ahead. Now go like, share and subscribe children. EduVibe, your own platform, the vibe of smart education.